اور اب خبر تفصیل سے ڈی.جی.پی جموں کشمیر دلباغ سنگھ کا کہنا ہے کہ سرپنچ اجے پنڈتا قتل کیس میں کل یا پرسوں بڑا خلاصہ کیا جائے گا۔ ڈی.جی.پی نے کہا کہ پاکستان کی ایما پر ملیٹنٹ بے قصور لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ دلباغ سنگھ الرٹ ہے اور جہاں کہیں بھی ضرورت ہوگی وہاں پولیس کو مستحکم کیا جائے گا۔ ڈی.جی.پی نے ڈسٹرکٹ پولیس لائنز میں امن و ضبط کی صورتحال پر افسروں کے ہمراہ ایک میٹنگ منعقد کی۔ انسیڈنٹ کو اس طریقے سے بڑھا چڑھا کے پیش کرنے کی ضرورتیں نہیں ہوتی ہیں۔ آتنکیوں کے پرسنل ایجنڈے بھی ہیں اور تنظیم کے ایجنڈے بھی رہتے ہیں۔ پاکستان کی ہدایتیں بھی ہیں کہ بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنایا جائے، مگر ہم سب جگہوں پہ اپنی سیکیورٹی گریڈز کو الرٹ رکھے ہوئے ہیں اور سب جگہ پہ جہاں سیکیورٹی کی کہیں کو کمی محسوس کی جا رہی ہے اس کو اور اسٹرینتھن کیا جائے گا۔ سر، اجے پنڈتا کی ہلاکت میں ابھی تک کیا انویسٹیگیشن نکلی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کل یا پرسوں تک بہت بڑا خلاصہ ہو جائے گا۔ اس میں ہم لوگ اس میں بہت بڑا کام پہلے سے کر چکے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہم یا تو صفایا کر چکے ہیں ان آتنکیوں کا جو ابھی تک تفتیش کہتی ہے، یا کرنے کے بہت قریب ہیں۔ اس موقع پر ڈی.جی.پی نے کہا کہ شاہراہ پر سیکیورٹی کو مزید مضبوط کیا گیا ہے اور ملیٹنٹوں کا وہاں سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے۔ دلباغ سنگھ نے کہا کہ ملیٹنٹوں کی دراندازی کی کوششوں کو بھی ناکام بنایا جا رہا ہے۔ راستہ نہیں ہے۔ 2017 میں بھی یہ کیس دیکھے، 2018 میں بھی دیکھے، 19 میں بھی دیکھے۔ نئی چیز یہ ہے کہ اب ہماری ہائی وے کی گرڈ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے، اب ان کا نکلنا زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ ہم نے 2018 میں بھی اکتوبر میں انکاؤنٹر کیا تھا جو جھجر کوٹلی کی بغل میں ہوا تھا، ابھی بھی انکاؤنٹر ہوا جو نگروٹا کے قریب میں ہوا، تو وہاں کوشش ان کی ہے ہر طریقے سے کہ انفلٹریشن زیادہ سے زیادہ کروائیں، مگر ہمارے کچھ لوگ تو ان کو بارڈر کے اوپر ہی ان کے جو کوشش اس کو ناکام کر رہے ہیں، اور باقی جو آگے نکل کے آتا اس کے لیے الگ الگ جگہوں پہ پولیس کے ناکے اور باقی فورسز کی جوائنٹ تعیناتی ہے۔ ڈی.جی.پی دلباغ سنگھ نے کٹھوا پولیس اسٹیشن کا دورہ کر کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس دوران انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کورونا کے خلاف جنگ میں جموں کشمیر پولیس اہم رول ادا کر رہی ہے۔ وہیں کشمیر میں گزشتہ دنوں سرپنچ کے قتل کو لے کر انہوں نے کہا کہ اس طرح کی وارداتیں پہلے بھی انجام دی جاتی رہی ہیں، اس طرح کے معاملوں کا معقول حل نکالا جائے گا۔ پاکستان کے ذریعے سیز فائر کی خلاف ورزی کو لے کر ڈی.جی.پی نے کہا کہ پاکستان نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی میں اضافہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی نیت میں کھوٹ ہے اور وہ دہشت گردوں کو ہماری سرحدوں میں بھیجنے کی طاق میں لگا رہتا ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے جوان پاکستان کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں۔ انہوں نے سیولین فرنٹ کے اوپر لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جہاں نوجوان بچوں کے ساتھ جو 500-600 کے قریب تعداد تھی ان کو اپنے ساتھ ملا کر کے جو لمبے عرصے تک ایک کارروائی اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کر کے کری، اس کے لیے بہت ہی بڑی سراہنا کٹھوا پولیس کی ہوئی۔ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، شاباشی دیتا ہوں اچھے کام کے لیے۔ ابھی بھی یہ وقت کرونا کا ہے، ابھی گزرا نہیں ہے، کچھ ٹائم نکلا ہے، کافی ٹائم باقی ہے ابھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے ٹائم میں بھی پولیس کو اسی طریقے سے لوگوں کا ساتھ دینا ہے، سہجوگ دینا ہے، اپنی ڈیوٹی کو نبھانا ہے اور اپنی سرکشا کا بھی خیال رکھنا ہے۔ جموں کشمیر میں آج کرونا وائرس کے 182 معاملے سامنے آئے ہیں، جن میں CRPF کے 79 اہلکار شامل ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اس وبا سے مزید 3 افراد فوت ہوئے ہیں۔ UT میں اس وبا سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 62 ہو گئی ہے۔ ہندواڑہ سے تعلق رکھنے والے ایک 18 سالہ نوجوان کی SNHS اسپتال میں موت ہو گئی۔ اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے مطابق حالانکہ یہی نوجوان پر حملے کا کیس تھا، لیکن اس کا کورونا نتیجہ پہلے ہی مثبت پایا گیا تھا۔ چاڈورہ بڈگام کے 70 سالہ شخص کی کل موت ہوئی تھی اور ان کے ٹیسٹ کا نتیجہ آج آیا۔ آج ایک راحت کی خبر یہ ہے کہ 215 مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ معروف پلمونولوجسٹ ڈاکٹر نوید نذیر بھی اسپتال سے ڈسچارج کر دیے گئے۔ ان کا کورونا نتیجہ منفی آیا اور کوارنٹین کی مدت مکمل کرنے کے بعد انہیں گھر بھیج دیا گیا۔ ادھر وادی کشمیر کے بازاروں میں چہل پہل میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ حالانکہ بیشتر لوگ انتظامیہ کے احکامات کی پاسداری کر رہے ہیں، لیکن چند افراد کو بے احتیاطی کرتے ہوئے بھی پایا گیا۔ کپواڑہ ضلع کے مل ہندواڑہ میں کورونا سے موت کے معاملے میں نیا موڑ آیا ہے۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ اس کی موت مار پیٹ سے ہوئی ہے۔ انہوں نے معاملے کی جانچ کا مطالبہ کیا۔ لواحقین نے الزام عائد کیا کہ اس سازش کے تحت اس کو قتل
इस कत्ल को कोरोना से हुई मौत करार दिया जा रहा है। लवाकिन ने आज हंदवाड़ा में वाक़े को लेकर ज़बरदस्त एहतजाज किया और मामले की आला सतही तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। उन्होंने कसूरवारों को सख्त सज़ा देने की मांग की है। उधर हंदवाड़ा पुलिस ने पहले ही इस सिलसिले में कई अफराद को हिरासत में लिया है और तहक़ीक़ात जारी है। श्रीनगर में इसका इलाज चल रहा था, इसमें कुओं में कोई हरकत नहीं कर रहा था। उसके बाद इसको जब उठाया उन्होंने तो ये इसकी रात को डेथ हो गई। डेथ अभी नहीं हुई थी, इसके पीछे पार्टी पड़ी हुई थी, वो पैसे वाले लोग हैं, इन्होंने हंगामा मचाया, उधर कुछ करना के भी हैं। गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये लोग इसकी तहकीकात करें, ग्राउंड लेवल पर सिटिंग ऑपरेशन करें, कोई कसूरवार जो पाया जाए उसको सख्त से सजा दिया जाएगी। बाकी इन लोगों को इंसाफ और डेड बॉडी वापस की जाए। बाकी ये जो कोरोना का मसला है, आज तक हमने तीरना के बिना किसी इस इलाके में किसी गांव का नहीं सुना कि यहाँ कोरोना है। लेकिन ये मुझे भी लगता है कि कोई साजिश बन रही है। इसीलिए कहता है कि इसको कोरोना था कि कोरोना की वजह से मर गया, वरना वो कोरोना में मुब्तला नहीं था, ना हमने किसी ने सुना। कुपवाड़ा जिले के दर्दपुर कुरापुरा में कोविड-19 की वजह से फौत हुए मामर शख्स की कोविड प्रोटोकॉल के तहत उनके आबाई गांव में तदफीन अमल में लाई गई। इस मौके पर लवाहिकीन और रिश्तेदार समेत निस्फ दर्जन अफराद ही मौजूद रहे। डॉक्टर और तिब्बी अमले के चंद अफराद भी मौजूद रहे। फौत हुए शहरी के राब्ते में आने वाले 1 दर्जन के करीब अफराद के नमूने हासिल किए गए। और वहीं लद्दाख यूटी में आज कोरोना के 6 नए मामले सामने आए। कोरोना के 3 नए मामले करगिल और 3 लेह में पाए गए हैं। लद्दाख में कोरोना के मामलों की तादाद 472 हो गई है। लेह और करगिल के आइसोलेशन सेंटर से एक मरीज सेहतयाब होकर घर वापस लौट चुके हैं। जिला पुलवामा में रोजाना कोरोना के केसों में इजाफा होने से लोगों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। कोरोना मुतासरा इलाकों में महकमे सेहत की टीमें मुतहर्रिक हो गई हैं। कबील और दीगर देहात में कोरोना के केस मुस्बत आने के बाद महकमे सेहत की टीमों ने इन इलाकों का तफसीली जायजा लिया और मुतासर अफराद के राब्ते में आए अफराद की जानकारी हासिल की। कचपुरा इलाके में महकमे सेहत की टीम को उस वक्त लोगों की मज़ाहमत का सामना करना पड़ा जब वो मुतासरा शख्स के राब्ते में आए अफराद को क्वारंटीन करने गए थे। हमने लगाए और यहाँ पे हेल्थ एडवाइजरी जारी की, लोगों को बताया कि वो यहाँ पे नहीं आए और यहाँ पे सबों को बोला कि यहाँ भीड़ नहीं करना, बिल्कुल सोशल डिस्टेंस रखना, मास्क लगा के रखना। तो हम यहाँ पे हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम इसके लिए हमारी मेंबर जो है यहाँ टीम सर्वेलेंस टीम है, हम इसके लिए तैयार हैं। गवर्नमेंट कर अपील अत सैनिटाइज अत महल सर बाजरस तुन अल्लाह ताला वनहन मगफिरत टीम ना टीम मेडिकल टीम फ्यूर या फ्यूर अम ब्रोट फ्यूर आज फ्यूर। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने घर की दहलीज तक इंतजाम की पहल के तहत इमारतों के इजाजतनामों की मंजूरी और पैदाइश व मौत के सर्टिफिकेट्स की फराहमी का अमल शुरू कर दिया है। जीएमसी के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने कहा कि कोरोना वायरस से पैदाशुदा हालात के तनाजुर में लोगों की भीड़ को जमा होने से रोकने और अवामी खदमात की फराहमी के अमल को मजीद मौसर बनाने के लिए ये निज़ाम मुतारफ़ कराया गया। मेयर ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के ई गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया को फ़रोग़ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इमारतों के इजाज़तनामों को घरों तक पहुँचाने से बदउनवानी को बड़ी हद तक ख़त्म किया जा सकता है। यहाँ पे डेथ एंड बर्थ सर्टिफिकेट की होता है, रश होता है, उससे हमारा पोल्यूशन भी बढ़ता है और कंजेशन भी होती है, ट्रैफिक की भी प्रॉब्लम होती है। तो मैं काफ़ी देर से पीछे लगा हुआ था और आज इसको हमने लॉन्च किया है। जो गवर्नमेंट है, जो हमारी गवर्नेंस है, डोर स्टेप पे जाए और ऑनलाइन सारा सिस्टम हो। डेथ एंड बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन हमने आज से इशू करना स्टार्ट कर दिया है। आप घर बैठे बैठे ही अपना उसको अप्लाई करें, उसी में आपको जो आपका वो खर्चा, पहले अगर हम 40 रुपये ले रहे थे, अब हमने कॉर्पोरेशन का 50 रुपये कर दिया है। और जिस तरह आपको ऑनलाइन इशू हो जाएगा, कोई भी अगर इंक्वायरी होगी तो ऑनलाइन ही आपसे हम पूछेंगे और ऑटोमेटिकली बाई पोस्ट आपको घर आएगा। सारे सिस्टम को हमने आज से ऑनलाइन किया है। जैसे ही आपकी बिल्डिंग परमिशन ओके हो जाएगी, आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका अप्रूवल हो गया है, इतनी आपकी फ़ीस है, आप जमा कराइए, चाहे ऑनलाइन कराइए चाहे ऑफलाइन कराइए, आपकी मर्ज़ी है। तो जैसे ही आपकी फ़ीस हमारे पास आ जाएगी और उसी तरह जिस तरह डेथ एंड बर्थ सर्टिफिकेट आपके घर आएगा, उसी तरह बिल्डिंग परमिशन भी आपके घर आएगी। एक हमारे स्टाफ को मैं कहूँगा, हर एक को एक आदत पड़ी है, कल आ जा परसों आ जा। मैं कई बार बहसता था कि परसों अच्छा मुहूर्त है क्या, आज नहीं है अच्छा, काम करना आज ही दे दो। तो इसलिए सारे हम खुद भुक्तभोगी हैं इस सारे सब चीज़ों की। हम चाहते हैं कि जनता हमारी जो है, जम्मू वासी हैं, उनको परेशानी ना हो।
कोविड-19 का नाम सुनकर ही लोग सहम जाते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो खुद कोविड में मुब्तला होकर दूसरों के लिए मशाल राह बनते हैं और उन्हें कोरोना से लड़ने का सलीका और हौसला देते हैं। ऐसा ही एक कोविड वॉरियर है श्रीनगर का मंजूर अहमद। पेश है श्रीनगर से न्यूज़ 18 उर्दू के एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद की खास रिपोर्ट। ये कोई जिम या वर्जिश करने का मरकज नहीं, बल्कि स्कीम्स मेडिकल कॉलेज अस्पताल बेमना श्रीनगर का कोविड वार्ड है। जम्मू कश्मीर पुलिस की सिक्योरिटी विंग में ड्राइवर मंजूर अहमद जब से अस्पताल में कोविड पॉजिटिव होकर आया, तब से यहाँ मुतवातिर बाकी मरीजों को वर्जिश कराता रहा। जिस वार्ड में पहले मायूसी का माहौल था, वहाँ आहिस्ता आहिस्ता जीवन की ज्योत जलने लगी और उदासी के धुंध लगे उम्मीद और आशा से रोशन हुए। बड़ उदास मार्शल आर्ट लड़के जान कराटी वराटी सारी बिल्कुल सर अहन मैं कर तीन मूजूब एक्सरसाइज चालू तम तम हौसले बढ़ो बेस बह हस्पताल शुक्र गुजार ये डॉक्टर साहब आसान रात दोह करान बड़ मेहनत। मरीजों का कहना है कि मंजूर के यहाँ आने से पहले वो सहमे ना जाने कितने अंदेशों में घिरे रहते थे, लेकिन इनकी आमद उनके लिए जिंदगी की एक नई उम्मीद लेकर आई। अस्पताल के कई मरीज अब सेहतयाब होकर घरों को चले गए हैं, लेकिन वहाँ भी वो मंजूर के हौसले और जज्बे को नहीं भूले। मैं जब पॉजिटिव आ गया, मुझे अस्पताल लाया गया, मैं बहुत डरा हुआ था, मैं पूरी तरह डिप्रेशन में आ गया था। नया पेशेंट मंजूर अहमद आ गए, उसने हमें एक्सरसाइज कराना शुरू किया। जब हम एक्सरसाइज शुरू करने लगे तो आहिस्ता आहिस्ता हमें ये खौफ निकलता गया और नतीजा ये हुआ कि जो ये जहनी दबाव हमें था वो खत्म हो गया। वर्जिश ही नहीं बल्कि मंजूर हर मरीज की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। कल शाम मंजूर अस्पताल से सेहतयाब होकर रुखसत हुआ और आज अपने घर में है, लेकिन अस्पताल के लोग उन्हें याद करते हैं। जो ये आदमी एडमिट था हमारे पास, इसने पूरे वार्ड में सबको मुतहर्रिक करके एक नया ही प्रोग्राम दिया कि भाई एक्सरसाइज करो, फिट रहो और कोविड से लड़ो। और उससे उन मरीज़ों के अंदर एक जोश जज्बा आ गया, जिससे कि बॉडी का इम्यून मैकेनिज़्म जो है स्ट्रांग हो जाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स रिलीज़ हो जाते हैं और कोविड को फाइट करने में आसानी होता है, जिसका रिज़ल्ट आपके सामने है कि उसकी बदौलत वो सारा वार्ड जो है जिनका एसिम्प्टोमेटिक था या हल्का सा कोई सिम्टम था, वो पूरा सेहतयाब होके हॉस्पिटल से रुखसत हो चुका है। अब की बार ये फरमान निकला है कि अब नोवल कोरोना वायरस के साथ ही जीना होगा, क्योंकि दवा कोई है नहीं और वैक्सीन की उम्मीद तो है, लेकिन फ़िलहाल आसार नज़र नहीं आते। ऐसे में मंजूर जैसे लोग ही हमें बताते हैं कि इस जानी दुश्मन के साथ कैसे जी लिया जाए। ऐसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया में इस रुए ज़मीन पर इंसान ने अभी तक कितने चैलेंजों का सामना किया, कितनी आफात का मुकाबला किया, अपनी दानिशमंदी के साथ कभी झुका नहीं, कभी रुका नहीं, पानी की तरह अपना रास्ता बनाता गया। आज भी उसी दानिशमंदी, उसी हौसले की ज़रूरत है कोरोना को हराने के लिए, और ये दानिशमंदी एहतियात में है। वीडियो जर्नलिस्ट शबीर शाह के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।